ਦੋਸਤੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਗਦੇ ਸੂਰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੇ यशपाल बांगिया जी। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਂਗੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਗੀਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं यशपाल बांगिया, प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन लुधियाना, आज सबका स्वागत करता हूं कि मुझे आज इस आकाशवाणी केंद्र में बुलाया गया है। तो मैं अपने बारे में कुछ ना कुछ बताऊं कि किस प्रकार मेरी जो 80 वर्ष की आयु मैंने व्यतीत की है। हम बूढ़े नहीं हैं, हम बड़े हैं। हमें ये कहते हैं हमें वो सम्मान मिलना चाहिए। आज इसी को दर्शाने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਗੀਆ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੋ ਹੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने MA हिंदी की। शुरू से ही मेरा अनुभव था कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा भी है, साथ में मेरा उसमें ज्ञान और लिखने का मुझे बहुत शौक़ था। मैंने जब BA की उसके पश्चात मुझे डाक विभाग में नौकरी मिल गई, तो मैंने वहाँ पर भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में मैंने कार्य प्रारंभ किया और वहाँ पर 38 वर्ष मैंने जो है डाक विभाग में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में कार्य किया। वो जनसंपर्क ऐसा था जिसमें लुधियाना को जांचने और समझने का मुझे बहुत अनुभव हुआ। उसमें मैंने सीनियर सिटीजन्स को भी देखा, उसमें मैंने स्कूली बच्चों को भी देखा, वहाँ पर संस्थाओं को भी देखा। ये एक मेरा ऐसे अनुभव थे क्योंकि मेरा शौक़ था डाक टिकटों का। डाक विभाग में भी मुझे इस फ्लैटली जिसे कहते हैं वो मुझे दिया गया। उसके 25 वर्ष मुझे भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा इस शौक़ को जागृत करने के लिए मुझे वो समय दिया। तो मैंने लुधियाना का कोई स्कूल, कोई कॉलेज ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर मैंने डाक टिकटों के शौक़ को जागृत ना किया हो। वहाँ पर क्लब भी बनाई, वहाँ पर एग्जीबिशंस लगाई। जिस प्रकार इस शौक़ को मैंने एक आंदोलन के रूप में जागृत कर दिया। और विभाग भी जो है वो कहता था बांगिया साहब, इस पर उन्होंने डाक सेवा अवार्ड 1986 में मुझे डाक सेवा अवार्ड दिया गया। फिर डाक टिकटों पर मैंने 6 किताबें भी लिखी। ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਰ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਲਓ, IAS ਦਾ, PCS ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਆਫ ਹੌਬੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝਾਂਕੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭੂਗੋਲ, ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਵਸਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਥੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਬਾਲ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰੋਤਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਗੀਆ ਜੀ। इश्क की धूल रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए,
कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਸਰੋਤਿਓ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਰਜਮੁਖੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਗੀਆ ਜੀ। ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। 1947 के विभाजन के पश्चात हम जब आए, मेरे फादर वो डाक विभाग में थे। डाक विभाग में कार्य नहीं करना चाहता था, परंतु मुझे विश होकर मैं आई वॉज सेलेक्टेड 5 टाइम्स इन द डिपार्टमेंट। मुझे और कोई नौकरी नहीं मिली, फिर डाक विभाग में लग गया। तो बच्चे मेरे पास आते थे, जब मैं विभाग में भर्ती हुआ मुझे टिकटें दी गई कि बांगिया साहब इसका आपने प्रचार प्रसार करना है। तो मुझे ऐसी लगन लगी उसमें, तो मैंने वहाँ पे क्लब भी स्थापित कर दी। उसमें हमारे यूनिवर्सिटी के डीन, दूसरे यहाँ पर जितने हैं, क्योंकि मेरे संपर्क में थे, वो हमने लुधियाना फिलटेलिक क्लब जो है उसका निर्माण कर दिया। और उसमें 8 अप्रैल को हमने उसकी गोल्डन जुबली भी मनाई है लुधियाना फिलटेलिक क्लब की। तो इस प्रकार जो डाक टिकटों का शौक है, एक ऐसा शौक है। अब मेरा म्यूजियम बना हुआ है, आप देखिए हेड पोस्ट ऑफिस लुधियाना में वहाँ म्यूजियम बना हुआ है, जो सारी डाक टिकटें जो मेरे द्वारा ही प्रदत्त की गई हैं। और इसके साथ साथ साइंस सिटी आप देखिए, साइंस सिटी में वहाँ पर मेरी स्टैंप गैलरी बनी हुई है, साइंस सिटी कपूरथला में। ठीक है, आज कंप्यूटर युग आ गया, परंतु ये शौक जो मरता नहीं है, अभी तक लोगों में है। जो इसको पालते हैं, जो इसके पीछे रहते हैं, वो सदैव लगे रहते हैं। डाक टिकट एक ऐसी चीज है जिसमें आप भारत की संस्कृति, विकास, जो भूगोल और कैसी कैसी जो शख्सियत हैं, स्वतंत्रता सेनानी जिसको भारत रत्न मिला है, गोल्डन जुबली मनाई, उसमें अपने स्कूटर पर जिनको भारत रत्न मिला है 49 पीपल्स जो है, जिनको मैंने अपने स्कूटर पर प्रदर्शित किया। स्कूटर अब मैं चलाता नहीं हूँ, परंतु मैं प्रदर्शित जरूर करता हूँ। हमने लुधियाना क्लब में प्रदर्शनी लगाई, उसमें सबको पता चला कि ये भारत रत्न जिनको मिला है, बच्चे भी देखें, बड़े सब देखें, एक देश की झांकी होते हैं। तो ये मैंने डाक टिकटें नन्हे राजदूत पुस्तक लिखी, 6 पुस्तकें मैंने लिखी हैं डाक टिकटों के ऊपर। डाक टिकटें नन्हे राजदूत, छोटा पेपर ना समझिए इसको, ये हमारी एक एम्बेसडर्स हैं, ये हमारा राजदूत हैं जो बाहर देशों में जाती हैं। तो पता चलता है कि ये भारत की डाक टिकट है, ये नेहरू जी की है, गांधी जी की है, ये पाखड़ा डैम की टिकट है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं दुनिया का जिसमें डाक टिकट ना निकली हो। ਉਸ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਗੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੀਮਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਲਕ ਲੱਗੀ? मैं 2004 ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਹਿਰੂ ਸੁਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਸੁਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ हैं। अवेयरनेस डे मनाया जाता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। इससे ब्लड डोनेशन के कैंप भी लगाते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, प्रेरणा देते हैं, धैर्य देते हैं। आप बड़े हैं, बूढ़े नहीं समझना आपने। शरीर जो है चाहे बूढ़ा हो जाए, आपका दिल जवान होना चाहिए। जी श्रोते, प्रोग्राम है सूरजमुखी। साडे नाल ने मिस्टर यशपाल बांगीया जी जो कि बहुत ही खूबसूरत गल्लां कर रहे हैं, बहुत सियानियां गल्लां कर रहे हैं, सानू दस रहे हैं कि समाज दे ਉਹ असली नायक किवें ने। बहुत सारी जिम्मेदारी इन्होंने संभाली हुई है, बहुत सारे बजुर्गों ਨੂੰ इन्होंने सीधी सेध दी हुई है। समाज ਨੂੰ सीधी सेध देण वाले ही असली नायक ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਗੀਆ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਨਾਇਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਗੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ? ਮੈਨੂੰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ, 3 ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕਸ ਇਨ ਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 13 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ? ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਥਯ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿਤਰਾਂਕਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਿਤਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮਾਜ ਕੇ ਬਾਗਵਾਨ, ढलती उम्र, बढ़ते कदम, जीवन की प्रेरणा, मुस्कुराती जीवन संध्या, दीज आर माई बुक्स जिसमें आप देखेंगे जीवन दर्शन। वो किताबें नाम भी ऐसा और दर्शन भी ऐसा और जीवन जीने की कला उसमें बताई जाती है कि हमने मरने से पहले ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन भाई हैं, हम उनकी जब वो जाते हैं तो उनकी विदाई भी जो है हम बड़े सम्मान से हमारे सीनियर सिटीजन करती है। उनकी विदाई हो तो पता चले कि ये सीनियर सिटीजन है, देखा जाए तो वो समाज का श्रृंगार है। हम इनको उनका सम्मान जो है प्रत्येक घर में होना चाहिए। ये लोगों में एक प्रेरणा देते हैं। जो बच्चे भी हैं उन्होंने भी आगे वैसे चलना है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलना है। सुबह उठकर पहला मेरा कार्य होता है उनको वंदना करता हूँ कि आप जहाँ भी हो मुझे आशीर्वाद दें। असली भगवान वो है, उन्होंने हमें पैदा किया है। तो इस प्रकार मैं चाहता हूँ कि अपने माता पिता की जीते जी जो हम जितनी सेवा कर सकते हैं उनको दुख ना दे, पीड़ा ना दे, उनकी सेवा करो ताकि वो घर में वो अपने आप को वही ना समझे, अकेला ना समझे। बिल्कुल। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेट से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक रोज़ जब वो जिंदगी से थक जाएंगे यही साया उनके काम आएगा। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। दिल चाहता है, दिल चाहता है, दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन। दिल चाहता है हम न रहे कभी यारों के बिन। दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਰੋਤਿਓ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਗੀਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਰਿष्ठ नागरिक, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕॉन्सेप्ट लिया है? वरिष्ठ नागरिक जीवन ग्रंथ ये एक जीवन की अनमोल पूंजी है। उसमें ये बताया गया है कि ये जीवन संध्या जो है हमारी, ये एक अनमोल खजाना है जो प्रभु ने हमें उपहार के रूप में दिया है। सब में हम बांटें, क्योंकि ये जीवन की जो संध्या में हमको ये ना समझे कि ये हमारी उम्र बड़ी हो गई है तो हम तो जा रहे हैं। जा नहीं रहे, कोई जा नहीं रहा। हमारे में उत्तेजना, हमारा उत्साह, हमारा धैर्य, संयम, आत्मसम्मान सदैव बना रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, पर अपनी क्षमता के समूह, क्योंकि हमारी क्षमता जो है थोड़ी सी क्षीण हो जाती है, उसके मुताबिक हमने काम करना है। शरीर जो है ढल सकता है, परंतु हमारा दिमाग, हमारा मन ये ढलता नहीं है। तो हम उसको बनाए रखें और लोगों में ये एक संदेश दें, आओ हम सब मिलकर कोई काम करें, समाज सेवा करें। समाज सेवा के बहुत कार्य हैं इस समय। मैं स्कूल भी चला रहा हूँ, डेली स्कूल जाता हूँ। 1100 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। वहाँ पर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, ये ध्येय बनाया मैंने। और आज वो स्कूल जो है वो न्यू जनरेशन स्मार्ट स्कूल बना हुआ है। तो ये समाज सेवा है। मैं प्रति वर्ष जो पुस्तक लिखता हूँ उसका सब्जेक्ट भी अलग होता है। समाज के बागवान, ये हम समाज के बागवान हैं, माली हैं। स्वावलंबन के सारथी, अब नई मेरी पुस्तक है स्वावलंबन के सारथी जो लिखी है 2021 में। तो स्वावलंबन के सारथी हम पाकिस्तान से आए तो यहाँ पर आकर हमने रेहड़ियाँ भी लगाई, हमने वो काम किए। कोई काम करना छोटा मोटा नहीं होता। तो इससे हमारी शक्ति बढ़ी। 3 भाई हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं वो कर्नल हैं, 10 सालों फुल कर्नल रहे आर्मी में, तीनों लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, 62, 65, 71। छोटा भाई है वो प्रिंसिपल बने। मैं अभी लिखता हूँ रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हाँ जरूर। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ? हर जीवन में स्वास्थ्य एक आवश्यक चीज है। स्वास्थ्य ही जीवन है। तो इसलिए सुबह उठते ही प्रभु का नाम लो। जैसे मैं माता पिता के आगे वंदना करता हूँ कि आप जहाँ भी हो मुझे आशीर्वाद देते रहो। उसके पश्चात थोड़ा बहुत व्यायाम जैसे करना है, जैसी आपकी क्षमता है थोड़ा सा करें, ताकि उसमें आपकी निरोगता है तो निरोगता है तो सब कुछ है। योग और निरोग, ठीक है कि नहीं? और भोजन केड़ा खाते हो तुसी? और देखो भोजन की ऐसी बात है, सुबह उठते ही पहले मैं नमक पानी से गरारे करता हूँ। अच्छा। उसके पश्चात एक नींबू और शहद का पानी लेता हूँ। उसके पश्चात आधा कप चाय लेता हूँ। ठीक है। उसके पश्चात मैंने जो मेरा है वो मूसली में लेता हूँ, वो दूध में डालकर उसको ले लेता हूँ। ये सुबह का नाश्ता है। ठीक है। बाकी रोटी, एक रोटी दोपहर की, एक रोटी रात की। बाकी खाने पीने में आप मतलब वैसी अटपटी चीज़ें जो हैं वो मत खाओ, इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब। बाकी अपने आप ठीक है, परहेज करो। परहेज है तो ठीक है, इससे कहते प्रिवेंशन इज बेटर देन परहेज चंगा। जी बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। राहों में तुमको जो धूप सताए, छाँव बिछा देंगे हम। अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम। छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम। हंसते हंसाते यूं ही गुनगुनाते चल देंगे 4 कदम। तुमसा मिले जो कोई रह गुजर, दुनिया से कौन डरे। 4 कदम क्या सारी उम्र चल दूंगी साथ तेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथ
कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम, चल दोनों साथ मेरे। ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਗੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਂਗੀਆ ਜੀ। ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾषा ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ कहना चाहोगे? मैं 1973 से पंजाब हिंदी परिषद मैंने संस्था का गठन किया कि हमारे शास्त्री जी से, जिससे मैंने प्रभाकर पास की थी, वो कहते बांगिया जी एक हिंदी संस्था का गठन करो। मैंने कहा ठीक है, तो हमने वो संस्था गठन की, क्योंकि मैंने उनसे प्रभाकर की थी, ज्ञानीराम शास्त्री थे, क्योंकि मैंने MA हिंदी में की थी, तो इसलिए मुझे हिंदी से विशेष प्यार भी था, लगाव था। और डाक विभाग में जहाँ मैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था, वहाँ पर भी मैंने हिंदी में ही कार्य करता था, तो वहाँ पर हिंदी जो कार्य समिति होती है भारत सरकार की, उसका मैं सदस्य था। साथ में जितने भी यहाँ सरकारी कार्यान्वयन समिति थी, तो उसका मैं मीटिंग्स में भी जाता था। इस प्रकार हिंदी से मेरा विशेष प्रेम रहा। मैंने पुस्तकें भी लिखी। वैसे तो देखो पंजाबी मेरी भाषा है, तो मैं पंजाबी साहित्य अकेडमी का मैं लाइफ मेंबर भी हूँ। मैंने 2 पुस्तकें पंजाबी में लिखी हैं, डाक टिकटां बोलदियां हन, डाक टिकटां विच अपना पंजाब, ये मेरी पुस्तकें जो हैं डाक टिकटों पर हैं। तो इस प्रकार मैंने भाषा जो है हिंदी अंग्रेजी 2 पुस्तकें मैंने इंग्लिश में लिखी हैं जो डाक टिकटों के ऊपर हैं, तो इस गाइड है उसकी। तो इस प्रकार भाषा कोई भी हो, परंतु प्यार जो है वो अपनी मातृभाषा हमारी पंजाबी है। मातृभाषा पंजाबी का विस्तार होगा तो हिंदी का अपने आप ही विस्तार होगा। हिंदी दिवस हम प्रति वर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं, तो इस वर्ष जो 14 सितंबर है वो गोल्डन जुबली का है। ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਨ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗਾਗਰ 'ਚ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਔਰ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। मेरा ये संदेश कि जो कार्य करो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जो कार्य करो उसको बीच में मत छोड़ो। आपकी इच्छा शक्ति इतनी होनी चाहिए कि कार्य करने में आप चाहे ढीले पड़ जाओ, परंतु उसको छोड़ो मत, चलते रहो जितना चल सकते हो। उस मालिक के प्रभु आपका जो विश्वास है वो अटूट आस्था बनी रहनी चाहिए। क्या बात है, बहुत ही सोहने विचार ने मिस्टर यशपाल बांगिया दे, और बहुत ही चंगा सुनेहा इन्होंने दिता है। कहते ने मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इन्हां दे कदमां 'च सारा जहान है, क्योंकि इन्हां दे विचार उच्च ने और समाज दे लई ज़्यादा जीवन है इन्हां दा। अपने बारे घट ते हर गल दे विच सिर्फ और सिर्फ समाज दे बारे सोच रहे ने। असीं तुहानूं नमन करते हैं, असीं सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और बहुत धन्नवाद करते हैं कि तुसीं अपने कीमती समय 'चों साडे लई समा कढिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस दे नाल ही असीं प्रोग्राम सूरजमुखी नूं इत्थे विराम लगाउण लई इजाजत चाहांगे। इजाजत दिओ। नमस्कार, जय हिंद।